Everyone, welcome back to the channel. Today we are going to understand the state judiciary in India, an important pillar of our judicial system that ensures justice at the state level. So, have you ever wondered how justice is delivered within a state? Who controls the interpretation of laws? What powers do high courts actually have? In today's video, we'll explore the complete structure and functions of the state judiciary in India. We'll discuss that how the appointment of judges is made, what is the jurisdiction of these courts, and the constitutional provisions, all in an easy to understand way. So stay tuned till the end. Coming on to the high courts in India. So under Constitution of India, every state has a high court, which is the highest judicial authority at the state level. Some high courts have jurisdictions over more than one state or union territory. So, till now, we are having 25 high courts in our India. From Articles 214 to 231 talks about High Court. They deal provisions regarding High Court, the comprehensive framework which govern the establishment, composition, powers, functioning of high courts across India. Every high court is a court of record as per Article 215, and that's where we are putting so much importance to our high courts. Judges are appointed by the President of India, which is mentioned under 217. So, moving forward to the video to make you understand that how the state judiciary works. Coming on to the state judiciary in India, it forms an important part of the integrated judicial system and it ensures the justice at the state levels. And how it includes high courts in hierarchy to district courts and subordinate courts. Now, see the provisions relating to the state judiciary, mainly they are covered in part 6 chapter 5th of Constitution of India, that is 214 to 231. 214 talks about high court for states. It states that there shall be a high court for each state and every state must have a high court, and parliament may establish one high court for multiple states or a common high court for states and union territories. जैसे if I give you an example of कि यहाँ पे पंजाब and Haryana and Chandigarh, these are the places which share single high court, that is Punjab and Haryana high court. Now, why this thing is important? This is not merely a structural directive, but it is a constitutional guarantee that every state, regardless of its size, population और resources, that means हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि वो स्टेट है कैसा, बड़ा है छोटा है, कितने रिसोर्सेज हैं, कि मतलब कितना रिसोर्सफुल है, कम है, पॉपुलेशन कम है, ज़्यादा, इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं. हम क्या चीज़ करेंगे कि अगर कोई स्टेट है तो इट शैल हैव अ डेडिकेटेड एपेक्स जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग विद इन इट्स टेरिटरी, यानी स्टेट के अंडर में एक जुडिशियल अथॉरिटी स्टैब्लिश करती है जिसका काम है उस स्टेट में जुडिशरी को अपहोल्ड करना, जुडिशियल जितने भी इंटरप्रिटेशंस हैं उन पे केसेस को डिसाइड करना. कोर प्रिंसिपल क्या है? द आर्टिकल ensures that no state is left without a supreme judicial authority at the state level, and it affirms the federal character of Indian constitution where judicial power is distributed between union and the states, with high courts acting as a judicial body at the state tier. That means हम बोलते हैं that we are having फेडरल प्लस समवॉट यूनिटरी फीचर्स. तो फेडरल फीचर है, दैट मीन्स वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट है, यूनियन की अलग हो गई, स्टेट की अलग हो गई. इन दैट केस फॉर यूनियन वी आर हैविंग सुप्रीम कोर्ट, और एक ही ए सिंगल यूनियन है तो एक ही कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, एंड फॉर डिफरेंट स्टेट्स वी आर हैविंग डिफरेंट हाई कोर्ट्स. सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि स्टेट लेवल पे हम सिटीजन्स को जुडिशियल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, दैट इफ दे आर नॉट एबल टू, या अगर वो किसी चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा रहे अपने हर ग्रीवेंस को लेके, सो एटलीस्ट दे हैव अ स्टेट लेवल बॉडी जहाँ पे वो अपने केसेस के लिए जा सकते हैं. इट इस्टेब्लिशेज हायरार्किकल जुडिशियल स्ट्रक्चर्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट.
enable state to have their legal disputes including those involving state legislation and local governance adjudicated by a court familiar with local conditions. This means सुप्रीम कोर्ट के पास तो हम जितने भी jurisdictions पढ़ चुके हैं उन्हीं के रिगार्डिंग केसेस जाएंगे, बट इनके अलावा जो हमारे स्टेट लेजिस्लेशन यानी स्टेट एक्ट्स के ऊपर कुछ केसेस होते हैं, लोकल गवर्नेंस में कुछ इश्यूज होते हैं, वहाँ से केसेस अराइज होते हैं, तो ये हम सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते। एक ऑलरेडी इतना बर्डन है कि एक सिंगल कोर्ट के ऊपर हम इतना ज़्यादा केसेस की पेंडेंसी नहीं डाल सकते। इन दैट केस हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट है। हर पर्सन या हर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इफ इट इज हैविंग द ग्रीवेंस रिगार्डिंग एनी स्टेट लॉ और लोकल गवर्नेंस, तो वो जाकर हाई कोर्ट में अपना केस डील कर सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हायरार्की है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में और वहाँ से अपील में जाएगा हाई कोर्ट में। नेक्स्ट इज एक्ट्स एज अ फाउंडेशनल which is given by constitution upon which all subsequent articles built the detailed framework of high court functioning। तो यहाँ से शुरू होता है that हर हाई कोर्ट के पास एक हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए, और वो जो हाई कोर्ट है दिस कैन बी शेयर्ड विद डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मूविंग फॉरवर्ड टू Article 215 which is called as High Courts to be the court of record। Provision कहता है that every high court shall be a court of record। This means कि यहाँ से जितने भी interpretations या जो cases decided होंगे those will act as the precedents for subordinate judicial bodies। तो बाकी high courts के लिए if they want to take any kind of कह लो कि अगर उन्हें किसी भी तरह का सिमिलर केस में अगर उन्हें देखना है कि पिछली कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किस तरह से इस केस को डील किया था, तो वो प्रेसिडेंट्स को आगे के लिए फ्यूचर लॉ सिमिलर केस पे अप्लाई कर सकता है। एंड सेम गोज फॉर ऑल सबऑर्डिनेट बॉडीज थ्रू आउट द कंट्री। इस पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मतलब है, पहला चीज ये है दैट इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद the things with the orders given by court, then you can be punished for contempt। And second thing is that it is permanent record holder। Permanent record holder means that whose evidentiary value cannot be questioned। So as a court of record, if it is called as permanent and authoritative record, all judgment, orders and proceedings of every high court are preserved as permanent evidentiary। And permanent evidentiary means that these records carry evidentiary value and they cannot be questioned or contradicted or challenged before any lower court or tribunal। क्योंकि हाई कोर्ट से आया है और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे उनके इस डिसीजन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते बिकॉज इट इज अथॉरिटेटिव। नेक्स्ट आता है जो डिसीजन हाई कोर्ट से आया है उन्हें हम एज अ प्रेसिडेंट ट्रीट करेंगे एंड इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द हाई कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। जैसे किसी एक स्टेट का हाई कोर्ट है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के ही जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनके लिए तो बाइंडिंग ही है, और अगर चाहे तो कोई दूसरा हाई कोर्ट भी डिफरेंट हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको रेफर कर सकता है इन देयर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ लीगल जुरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। नेक्स्ट आता है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट मीन्स कि अगर किसी भी तरह से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में अगर कोई ऑर्डर पास किया है यानी हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर पास हुआ है, तो दैट मीन्स एवरी हाई कोर्ट हैज अ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। दिस मीन्स कि उसकी डिग्निटी, अथॉरिटी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करता है। अगर आप किसी भी तरह से इस ऑर्डर को मानने से मना कर देते हो तो कंटेम्प्ट अप्लाई होगा। कंटेम्प्ट दो तरह से हो सकता है, सिविल कंटेम्प्ट जहाँ पे आपने जानबूझ के कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट जहाँ पे आपने स्कैंडलाइज करने की कोशिश की थ्रू दैट कोर्ट और आपने जो प्रेजुडिसिंग जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो इट विल बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सो ये इंश्योर करता है कि जो हमारे कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए और उनका जो उनके थ्रू जो जस्टिस जा रहा है उसको किसी भी तरह से हिंड्रेंस ना प्रोवाइड हो। बेसिकली इट मेंटेन्स द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी एंड इंश्योर्स द जुडिशियल डिसिप्लिन। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्शन फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, कोर्ट्स में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी लिमिटेड लीगल स्टैंडिंग होती है, बट वहीं पे जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं इनके रिकॉर्ड्स को हम ऑथेंटिक और कंक्लूसिव एविडेंस मान के चलते हैं। कंक्लूसिव एविडेंस मीन्स दे कैन नॉट बी, दीज आर द परमानेंट रिकॉर्ड्स एंड दीज एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ दीज एविडेंसेस कैन नॉट बी क्वेश्चन। सो ये जो स्टेटस है दिस रीइंफोर्सेस द हाई कोर्ट सुप्रीम पोजिशन विद इन द स्टेट जुडिशियल हायरार्की, और यहाँ
यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी जो भी मैटर्स हैं लॉ एंड जस्टिस में उसको उसे सबसे ऊपर रखता है, राइट. So this is the importance of 215, which states that High Court as a court of record. Moving forward to 216, that is Constitution of High Courts. Constitution of High Court कहता है, composition बताता है आर्टिकल 216 और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बता रहा है कि कितने लोग हाई कोर्ट में होंगे. सो पहला तो हो गया चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट. तो सबसे पहले सीजे प्लस अदर जजेस डिपेंडिंग ऑन प्रेसिडेंट कि वो कितने जजेस को अपॉइंट कर रहा है. एंड द नंबर ऑफ जजेस दिस इज डिसाइडेड or you can say it is dependent on the workload, pendency of the cases and recommendations of the judiciary. Here it is mentioned that it is flexible strength, a constitutional design choice. This means कि constitution हमें किसी भी तरह का specific number नहीं देता है हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट पे compulsion हो कि एक सीजे होगा और कितने जजेस होंगे. बट ये जो चीज़ है दिस इज अ डेलिबरेट एंड प्रैग्मेटिक डिजाइन चॉइस जहाँ पे चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि इस हाई कोर्ट में कितने जजेस को अपॉइंट किया जाएगा. क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, वर्कलोड और पेंडेंसी कितनी है और उस हाई कोर्ट में प्लस उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में. सेकंड आता है पॉपुलेशन और जोग्राफिकल साइज कैसा है स्टेट का. थर्ड आता है नेचर और वॉल्यूम ऑफ लिटिगेशन, मतलब वहाँ पे किन चीज़ों के केसेस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन जैसे सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर रिट रिगार्डिंग मैटर्स है. और फोर्थ आता है रिकमेंडेशंस मेड पीरियोडिकली बाय सीजे ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट. तो उनके रिकमेंडेशंस पे भी नंबर ऑफ जजेस का जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है वो किया जा सकता है. फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है कि चेंजिंग डिमांड्स के साथ क्या है, हम अपनी जो हाई कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें हम इंक्रीज या डिक्रीज कर लेंगे. और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है इसलिए रखी गई क्योंकि हर चीज़ में हम वी कैन नॉट गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एवरी टाइम इफ मोर जजेस आर नीडेड. तो इसलिए हम इनकी जो नंबर है वो हमने डिसाइड नहीं कर रखा है इन दिस आर्टिकल. नेक्स्ट आता है द चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? चीफ जस्टिस मीन्स ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेरेमोनियल हेड ऑफ हाई कोर्ट जिसका काम है जुडिशियल फंक्शंस तो परफॉर्म करता ही है बट कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता है. ही इज द हाईएस्ट जज इन दैट हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस का काम है टू सी द एलोकेशन ऑफ केसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ द कोर्ट एंड प्लेज पाइवटल रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ अदर हाई कोर्ट जजेस बाय प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट एंड सीजेआई. तो इनका काम है कि सीजेआई को और प्लस प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड करना दैट नाउ हाउ मेनी जज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एंड हु शुड बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज. एंड द चीफ जस्टिस ऑल्सो स्वेयर्स इन द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द सर्टेन सेरेमोनियल फंक्शंस. तो गवर्नर को भी साथ में ही इज कमिंग विद द गवर्नर फॉर सर्टेन सेरेमोनियल फंक्शंस. Next आता है sanctioned versus working strength. In practice there is often significant difference in the sanctioned strength, मतलब approved judges कितने हैं, और working strength मतलब judges actually in position. और इससे होता क्या है, leading to case backlogs, जिसका सबसे बड़ा ये इंडियन जुडिशरी का बैकड्रॉप है, where we are like जितने हमने सैंक्शन स्ट्रेंथ कर रखी है उतनी अपॉइंटमेंट हो नहीं पाती है और जिसकी वजह से जो पेंडेंसी है केसेस भी कंटिन्यूसली वो बढ़ती जाती है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कि वेयर दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी वर्कड अपॉन बाय आवर पार्लियामेंट एंड द अथॉरिटीज सो दैट ये बैकलॉग्स धीरे धीरे कम किए जा सके, पेंडेंसी कम हो. Moving forward to Article 217. 217 talks about appointment and the conditions of judges कि हम अपॉइंट कैसे करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, टेन्योर क्या होगा, अगर रिमूवल करना है तो वो कैसे होगा. सबसे पहले आते हैं कि इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होंगी. अपॉइंटमेंट के लिए जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट ये अकेले नहीं करते हैं. इनका काम क्या है, ये कंसल्टेशन के साथ करेंगे. कंसल्टेशन में वी आर प्रैक्टिसिंग कोलेजियम सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ Supreme Court judges, senior Supreme Court judges, Chief Justice of India, and along with him the governor of the concerned state and Chief Justice of High Court. ये चार लोग होंगे जब ये डिसाइड होगा that who is the person going to be appointed as the judge. The multi-stakeholder consultation is designed to ensure कि ये जो appointment है ये merit पे हो, free from any kind of political influences किया जाए.
क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? कोई भी पर्सन जिसको हाई कोर्ट का जज बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ईदर हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years। अगर मान लो उसने किसी जुडिशियल ऑफिस में वो 10 years के लिए बैठा है, या फिर और में आ जाता है, और ही हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और टू और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 years। तो ये पहला वाला तो एंड है, ए वाला एंड है, एंड के साथ बी और सी है, या तो जुडिशियल ऑफिस होल्ड करता हो या फिर एडवोकेसी करता हो। यहाँ पे मिनिमम एज सेट नहीं की गई है, बट प्रेसिडेंट ये इंश्योर करता है कि सूटेबिलिटी हो व्हेन द कंसल्टेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो प्रेसिडेंट इंश्योर्स दैट कि ये चीज़ें ध्यान में रखी जाए। टेन्योर कितना है? फॉर हाई कोर्ट जज इट इज 62 years, एंड अ जज में वेकेट ऑफिस अर्लियर बाय रेजिग्नेशन एड्रेस टू प्रेसिडेंट। अगर किसी भी हाई कोर्ट जज को अपना रेजिग्नेशन देना है, मतलब उसको अपनी सीट वेकेंट करनी है, तो सबसे पहले वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को देगा। ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट, उसका ट्रांसफर भी किया जा सकता है। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट बाय फॉलोइंग एन एड्रेस बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। दैट मीन्स अगेन ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट जो है रेजोल्यूशन पास करवाएगा, रेजोल्यूशन को एटलीस्ट वो उस जो हाउसेज हैं उनके सामने एड्रेस करेगा। दोनों हाउसेज से इम्पॉर्टेंट है कि ये स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। जब ये 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाएगा तो देखा चेक किया जाएगा कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा दैट वेदर दिस पर्सन इज गिल्टी और नॉट, और फिर जाके ये 2/3 मेजॉरिटी होगी, और अगर दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो फिर इस जज को रिमूव कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है, जो ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ दो हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ऑन ओनली द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रेसिडेंट विल follow for this impeachment process to be initiated in the houses। एनजेएसी, एनजेएसी का नोट यहाँ पे मेंशनड है, ये हम यूनियन जुडिशरी में पढ़ चुके हैं दैट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 ने ये जो एनजेएसी है इसको स्टैब्लिश किया था, बट ये कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर रहा था। बट लेटर ऑन जब 2015 में एनजेएसी केस यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, तो यहाँ पे इसने दोबारा से कॉलेजियम सिस्टम को रीस्टोर किया और एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। तो हम अभी भी चाहे यूनियन जुडिशरी हो चाहे स्टेट जुडिशरी हो, वी आर फॉलोइंग कोलिजियम सिस्टम। नेक्स्ट आता है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, जैसे आता है 218। 218 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। तो मान लो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट जजेस पे अप्लाई होंगे, दोज ऑल्सो अप्लाई ऑन हाई कोर्ट्स ऑल्सो, जैसे कि उनका रिमूवल कैसे होना है, उनकी सैलरीज क्या होंगी या कौन डिसाइड करेगा, उनको क्या क्या प्रिविलेजेस प्रोवाइड होगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंश्योर करता है कि स्टेट लेवल पे भी इंडिपेंडेंस रहे जुडिशरी की। 219 टॉक्स अबाउट ओथ एंड अफर्मेशंस। ओथ एंड अफर्मेशंस में जितने भी हाई कोर्ट जजेस हैं दे टेक ओथ अपॉन बिफोर गवर्नर ऑफ द स्टेट, या फिर कोई पर्सन जो कि अपॉइंटेड किया जाए गवर्नर से, अगर गवर्नर प्रेजेंट नहीं है तो। सो ये जज स्वेयर क्यों करता है? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू परफॉर्म ड्यूटीज इम्पार्शियली एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है 220। 220 टॉक्स अबाउट कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। अगर कोई जज परमानेंट हो गया है दैट मीन्स देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन हिज प्रैक्टिस। रीजन क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं उनकी प्रैक्टिस पे? क्योंकि वो एक परमानेंट हाई कोर्ट जज हैं, ही कैन नॉट प्रैक्टिस इन द सेम हाई कोर्ट और इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर इट। और पर्पस क्या होता है? जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट ना हो और एक काइंड ऑफ जुडिशियल एथिक्स एज इट इज कंटिन्यू बनी रहे। नेक्स्ट है 221। 221 टॉक्स अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेस गिवन टू दीज जजेस। सैलरीज डिटरमाइन करती है पार्लियामेंट, और जो ये सैलरीज हैं अगर मान लो उनके टेन्योर में रिड्यूस नहीं करी जाएंगी। जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था तो जो सैलरीज चल रही थी वो एज इट इज चलती रहेंगी, एक्सेप्ट अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी ना आ जाए। इंपॉर्टेंस क्या है? It is protecting the judicial independence where the salaries and allowances are decided by parliament, right? अब हम आते हैं 222 पे, where transfer of a judge from one high court to another is done।
ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस अगर एक से दूसरे में जा रहा है, दैट मीन्स कि इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब ये ट्रांसफर मैकेनिज्म होता किधर से है? प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ जज आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई। प्रेसिडेंट का काम है वो पहले तो सीजीआई से कंसल्ट करेगा और फिर वो एक जज का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। जो होता क्या है, ये जो ट्रांसफर्स है ये इनिशिएट और डिसाइड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के थ्रू एंड प्रेसिडेंट एक्ट ऑन देयर रिकमेंडेशन। जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है जो कहेगा, जिसकी रिकमेंडेशंस पे प्रेसिडेंट को फर्दर एक्ट करना है। और ये जो कंसल्टेशन है विद सीजीआई, इट इज कंसीडर्ड एज मैंडेटरी एंड बाइंडिंग। ये एडवाइजरी नहीं होती है, इट इज रीअफर्म्ड बाय सर्टेन लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। रीजन क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का और बेटरमेंट कर पाएं, आप नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी को और इंक्रीज कर पाएं, फॉर दैट रीजन दिस पर्टिकुलर थिंग इज डन। कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है? जिसको भी ट्रांसफर किया जाता है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कंपनसेटरी अलाउंस इन एडिशन टू द रेगुलर सैलरी, क्योंकि उसको ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो रिकॉग्नाइजिंग द पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिस्ट्रप्शन इन्वॉल्व इन द रीलोकेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड कोर्ट, इस तरह का अलाउंस भी उनको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं कि लोकल बायसनेस ना हो। एक जज जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है काफ़ी सालों से किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, उसका ऑफ कोर्स कोई भी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है और वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हो ही जाता है, और कहीं ना कहीं इट विल इन्फ्लुएंस द जुडिशियल डिसीजन। तो हम इन ट्रांसफर्स को ये इसलिए किया जाता है जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाए और इनके थ्रू जो बायसनेस होने के चांसेस हैं उसको कम किया जा सके। एंश्योर्स इम्पार्शियलिटी मीन्स आप अगर जजेस का रोटेशन करते रहोगे तो दैट मीन्स कि जो जस्टिस है उसका एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट फियर एंड फेवर होगा, ना ही किसी से डर है ना ही किसी का फेवर होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस, दिस मीन्स कि ट्रांसफर की वजह से क्या है, जुडिशियल स्ट्रेंथ जो हाई कोर्ट में बनी हुई है उससे जो एक्सपीरियंस्ड जजेस हैं वो और नई जगह जाके दूसरे स्टेट्स में जाके दे विल लीड दोज केसेस, दे विल रिकॉग्नाइज एंड डिसाइड दोज केसेस विद ग्रेटर पेंडेंसी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केसेस। तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस जजेस होते हैं उनके थ्रू जो प्रोसेस है वो और स्मूथ हो जाता है, जहाँ पे कुछ इश्यूज अगर आ भी रहे होते हैं तो। Disciplinary tool, in some cases transfers have also been used as a means to address administrative concerns. That means कि एक ये हमेशा डिबेटेड ही रहा है। दिस मीन्स कि अगर हम उनका रोटेशन करते रहेंगे तो एक डिसिप्लिन जो जुडिशियल डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए दैट विल बी मेंटेन्ड। Transfer provision is a key instrument in maintaining a single, integrated, and impartial national judiciary, even while the judiciary is organized on state lines. तो हम जो हायरार्की में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, हाई कोर्ट दे आर डिफरेंट। काफ़ी सारे स्टेट्स में अपना अपना हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे दे कीप ऑन चेंजिंग, दे कीप ऑन ट्रांसफरिंग जज टू वन जज टू अनदर हाई कोर्ट एंड अदर जज टू अनदर हाई कोर्ट, सो दे कीप ऑन रोटेटिंग। एंड द रीज़न इज कि ये रोटेशन का जो मेजर जो आप कह लो कि रीज़न क्या है, दैट इज टू मेंटेन द सिंगल इंटीग्रेटेड इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड नेशनल जुडिशरी विच इज ऑल्सो ऑपरेटिंग ऑन द स्टेट लाइन्स। Moving forward to 223, 223 talks about appointment of acting chief justice. Acting chief justice का मतलब होता है कि अगर इन केस आपके जो CJI हैं अगर वो for the time being अगर वो प्रेजेंट नहीं है या अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, अनएबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट विल अपॉइंट एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। 224 talks about appointment of additional and acting judges. Additional and acting judges का मतलब होता है, additional means additional and acting judges. Additional का मतलब होता है that appointed for temporary increase in workload. इनको हम टेम्परेरी वर्कलोड को बैलेंस करने के लिए, उस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए अपॉइंट करते हैं। एक्टिंग जजेस का मतलब होता है जब रेगुलर जज एब्सेंट है टेम्पररली, जब रेगुलर जजेस एब्सेंट तब हम इनको अपॉइंट करेंगे सो दैट दे विल बी लाइक परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ रेगुलर जज। और ये जो एडिशनल जजेस का जो टाइम पीरियड होता है, एक्टिंग जजेस का जो टाइम पीरियड होता है, एक्टिंग जजेस तो तब तक रहेंगे जब तक नया वो पुराना वाला जज रेगुलर जज वापस नहीं आता, और ये जो एडिशनल जजेस हैं इनका टाइम पीरियड शुड नॉट बी मोर दैन 2 years। नेक्स्ट आता है 224A। 224A टॉक्स अबाउट रिटायर्ड जजेस।
अगर हमें रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करना है तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस में बी रिक्वेस्टेड टू सिट एंड एक्ट एज जजेस। तो यहाँ पे पेंडेंसी कम करने के लिए भी उनको बुला लिया जाता है और जुडिशियल एक्सपीरियंस को यूज करने के लिए भी उनके उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में उनको बुलाते हैं। बट नाउ कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन हाई कोर्ट जजेस की कंसेंट भी होनी चाहिए कि अब रिटायर हो चुके हैं, 62 ईयर्स के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, अब अगर उनको वापस बुलाते हैं तो वेदर दे वांट टू एंटरटेन दिस पर्टिकुलर पोस्ट और नॉट, तो उनकी कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है 225। 225 टॉक्स अबाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। जुरिस्डिक्शंस पे हम बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वी नो द मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन। वन थिंग आई टेल यू इन दिस, इनके पास 4 जुरिस्डिक्शंस होते हैं। पहला हो गया ओरिजिनल। ओरिजिनल वी नो कि पहली बार केस आया है। दूसरा हो गया एपिलेट, अपील से केस आया है। थर्ड इज रिट जुरिस्डिक्शन, जो जहाँ 226 में जहाँ पे रेट फाइल होती है। एंड लास्ट है सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी का मतलब होता है दिस कोर्ट विल बी एक्टिंग एज अ सुपरवाइजरी कोर्ट टू द अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो भी इनकी टेरिटरी में परफॉर्म करते हैं। तो सुपरविजन में इनका जुरिस्डिक्शन है हर उस केस पे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट आता है 226। 226 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। जैसे हम 32 की बात कर रहे थे, 32 में जैसे हम 5 रिट्स के लिए जाते हैं, वैसे ही 226 में हम इन 5 रिट्स को अप्लाई कर सकते हैं व्हेन देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा भी कुछ रिट्स इशू करी जा सकती हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हम अदर लीगल राइट्स के भी इन्फ्रिंजमेंट पे जा सकते हैं। तो दिस 226 इज वाइडर इन स्कोप। तो ये 5 रिट्स तो है ही, बट हाई कोर्ट्स हैव वाइडर रिट जुरिस्डिक्शन देन सुप्रीम कोर्ट बिकॉज हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर लीगल राइट्स। 227 I told you power of 227 talks about power of superintendence over subordinate court, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या है, हाई कोर्ट्स के पास सुपरवाइज करने का पावर होता है टू ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द स्टेट। अब ये पावर्स कैसी होती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ केसेस भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट्स भी हो सकता है, और कई बार ये रूल मेकिंग पावर्स पे भी अपनी पावर का यूज करेंगे। सो दिस मीन्स इट इज ensuring the uniformity and discipline in the judiciary. 228 टॉक्स अबाउट कि ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस टू हाई कोर्ट। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो हाई कोर्ट में विड्रॉ केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चंस, जिसको हम कहते हैं ना सुओ मोटो। एवर हर्ड दिस टर्म सुओ मोटो? दिस मीन्स कि हाई कोर्ट में विड्रॉ केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, जहाँ पे कुछ ऐसा मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात है, तो और वो जो केस है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में लाया गया, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो एक्सट्रैक्ट करके हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड इट एंश्योर्स दैट कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जो है वो हायर जुडिशरी के थ्रू किया जाए। नेक्स्ट आता है वी आर हैविंग 229। 229 टॉक्स अबाउट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स का मतलब है कि चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा कि कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे या कौन से सर्वेंट्स होंगे आपके हाई कोर्ट में, उनकी सर्विस की कंडीशन क्या होगी, आपके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, उसका काम क्या होगा। तो ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस है हाई कोर्ट की वो उनके खुद के पास होती है। चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का डिसाइड करता है कि हमें कैसे इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है और इनको क्या काम देना है। 230 टॉक्स अबाउट एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। तो कई बार क्या है, ये जो 230 है, 230 अपना जिस भी हाई कोर्ट का हम बात कर रहे हैं उसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड किया जा सकता है टू यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। तो बट वो करता कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक्सटेंड जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। 231 now coming on to this article, that is establishment of common high court. Establishment of common high court मतलब it is the power of parliament by law to establish a common high court for two or more states or two or more states and a union territory. ये article करेगा क्या, it is introducing a flexibility into state judiciary architecture where the judiciary is allowed to be structure based, और जहाँ पे practical और administrative considerations के बारे में ज़्यादा फोकस हो, ना कि स्टेट बाउंड्रीज पे। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के पास एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा के पास एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। सो इसीलिए 231 बताता है कि हम कॉमन हाई कोर्ट्स को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ कम्स कि सब ऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में देखो
कई सारे जो हाई कोर्ट्स के नीचे जो कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, लोक अदालत, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन स्टेट जुडिशरी। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो कॉमन हाई कोर्ट क्रिएट कर रहा है ये पार्लियामेंट करता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा। यूनियन विल डिसाइड कि कॉमन हाई कोर्ट किन स्टेट्स या किन यूनियन टेरिटरीज में कॉमन होगा। नेक्स्ट आता है Parliament can create, reorganize और dissolve such common courts through ordinary legislation। पार्लियामेंट को अगर क्रिएट करना है या फिर उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना है, जैसे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को चेंज करना है, या किसी भी जो कोर्ट है उसको डिसॉल्व करके नया बनाना है, तो उन दैट केस जो पार्लियामेंट है वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन मतलब नॉर्मल बिल पास करेगी और उसको एक्ट में कन्वर्ट करवाएगी। हियर इज ऐसा करते क्यों है? क्योंकि जुडिशियल एफिशिएंसी चाहिए होती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली बर्डनसम ना हो जाए जजेस, इसलिए इन चीज़ों को किया जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाले जाते हैं बट दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ जस्टिस। इसका एग्जाम्पल है, आई टोल्ड यू, पंजाब एंड हरियाणा at Chandigarh, which is serving both Punjab and Haryana and Union Territory of Chandigarh also. Same goes for Guwahati High Court. Guwahati High Court served multiple northeastern states. So these two are the examples of जहाँ पे हम common states या common union territories में एक particular high court से judgment ले रहे हैं। गवर्नेंस ऑफ कॉमन कोर्ट्स कैसी होगी? तो पार्लियामेंट का जो लॉ है दैट विल आल्सो डिटरमाइन द हाउ द कोर्ट शैल फंक्शन, मतलब उनके एक्सपेंसेस कैसे होंगे, आपस में स्टेट्स में कैसे पैसे डिवाइडेड होंगे, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव कंट्रोल होगा, दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। और ये एक्ट निकल के आता है जिससे दे अडैप्ट अ मल्टी स्टेट कोर्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू पावर्स एंड जुरिस्डिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। पावर्स एंड जुरिस्डिक्शंस, आई टोल्ड यू, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जहाँ पे पहला केस आया है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड अपील हुई है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट से डिसीजन हो चुका है, इसके बाद हाई कोर्ट के पास वो अपील गई हुई है, तो फर्स्ट इंस्टेंस पे भी हो सकती है, सेकंड इंस्टेंस पे भी जा सकती है। तो ये जो एपीलेट जुरिस्डिक्शन है ये अपील वाले कोर्ट्स पे अप्लाई होगी। एंड बाइंडिंग प्रेसिडेंट फॉर ऑल कोर्ट्स विद इन देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, अगर कोई डिसीजन आता है रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ। रेट जुरिस्डिक्शन, रेट जुरिस्डिक्शन मीन्स 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है टू इशू रिट्स इन्वॉल्विंग हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंट, सेम जो हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए पढ़ा था। बट इसके अलावा भी वो रिट इशू कर सकता है फॉर अदर लीगल राइट्स ऑल्सो। तो फंडामेंटल राइट्स है तो ये 5 रिट्स प्लस एडिशनल रिट्स फॉर द violation of your legal or other constitutional rights। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन 227, अभी हमने देखा कि सुपरिटेंडेंस होती है ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स जो भी उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएंगे, एक्सेप्ट दोज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लॉज रिलेटिंग टू आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज से जितने भी डिसीजन आते हैं या उधर की जो कोर्ट्स होती हैं उनमें सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन फॉल नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी स्टेट जुडिशरी में जो भी आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर सुपरिटेंडेंस अप्लाई करेगी ऑफ द हाई कोर्ट। और सुपरिटेंडेंस का मतलब है एक तरह की पावर जहाँ पे रिकॉर्ड्स मांगे जा सकते हैं, प्रोसीडिंग्स को एग्जामिन किया जा सकता है, डायरेक्शन इशू की जा सकती हैं, और ये भी इंश्योर किया जा सकता है दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एक्सरसाइज देयर जुरिस्डिक्शन करेक्टली एंड एफिशिएंटली। सही केस जैसे मान लो फैमिली लॉ का केस है तो फैमिली कोर्ट्स में ही जाए, ना कि किसी और कोर्ट में, तो इस जुरिस्डिक्शन को पर भी चेक लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीन्स कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिफाइड सिस्टम है जो कि ये कहता है दैट जस्ट फॉलो द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रिंग बोथ यूनियन एंड स्टेट लॉ। तो हाई कोर्ट ऑक्यूपाई द क्रूशियल मिडिल टीयर है ऑफकोर्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, देन योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो बीच का टीयर है, राइट। सो इनका काम क्या है? टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द एपेक्स कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट्स जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो अ काइंड ऑफ की एक ब्रिज बनाता है बिटवीन दीज टू हायरार्कीज। ब्रिज कैसे करेगा? इट इज एक्टिंग एज अ क्रिटिकल लिंक डाउनवर्ड
यानी सुपरविजन है, गाइड कर रहा है, करेक्ट कर रहा है टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड सिविल जज कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थ्रू और एनी ट्रिब्यूनल्स थ्रू एपिलेट एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अपवर्ड कैसे करता है? अपवर्ड करेगा यानी सुप्रीम कोर्ट के साइड जब बैलेंस करेगा तो ये देखेगा दे फिल्टर एंड रिफाइन लीगल क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात हो रही है उसको रिफाइन करता है, resolving the vast measure of disputes so that only significant constitutional questions or matters of general public importance reach the सुप्रीम कोर्ट। कोशिश होती है कि यहीं पे जितने केसेस हैं उनको डिस्पोज कर दिया जाए, जिससे कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ज़्यादा पेंडेंसी क्रिएट ना हो, और यहीं पे जो क्वेश्चन ऑफ लॉ की हम बात करें वो इस तरह से इंटरप्रिटेशन हो जाए कि वो फुल एंड फाइनल बाइंडिंग हो और फुल प्रॉपर हो, जिससे कि उस चीज़ पे एक्सेप्टेंस क्लियर हो। अनलेस इसके अलावा अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई केस है तो वो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है लेटरल। लेटरल मतलब आपस में कई सारे हाई कोर्ट्स हैं, अपनी बराबरी में ये किस तरह से ब्रिज करते हैं। दे इंटरप्रेट एंड अप्लाई बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन यूनिफॉर्मली विद इन देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ensuring consistency of law across all subordinate courts। तो जितने भी लॉज है चाहे वो यूनियन के हो चाहे वो स्टेट के हो, वो बैलेंस्ड वे में उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो प्रॉपर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो भी उनका कंटिन्यू रहे, प्लस दोनों लॉज यूनिफॉर्मली उनकी जो टेरिटरी है उसमें अप्लाई किए जा सकें। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एट द स्टेट लेवल। हाई कोर्ट्स को बोला जाता है कि आप अपने लेवल पे यानी जो भी केसेस आपके पास आ रहे हैं, स्टेट के जो केसेस हैं उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हो। सो इनका काम क्या है? दे एडजुडिकेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज। स्टेट के लॉज पे जुडिशियल डिसीजन दे सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस पे दे सकते हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पे भी। यानी जो हाई कोर्ट है दिस इज अप्लाइंग द चेक ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट। स्टेट एग्जीक्यूटिव के एक्शंस पे भी क्वेश्चन लगाता है, स्टेट लेजिस्लेचर पे भी क्वेश्चन लगा सकता है, चेक कर सकता है। तो सच इंटरप्रिटेशंस अनलेस ओवरटर्न बाय सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट बाइंडिंग फॉर द एंटायर स्टेट। अगर इनके हाई कोर्ट के थ्रू एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन पे अगर कोई डिसीजन आया है तो इन दैट केस अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने चेंज नहीं किया तो फिर जो भी डिसीजन है दैट विल बी हैविंग अ बाइंडिंग इफेक्ट इन दैट स्टेट ओनली। अपहोल्डिंग रोल इन रूल ऑफ लॉ थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट का काम क्या है? रूल ऑफ लॉ, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इन दोनों तीनों पॉइंट्स को जो कह सकते हैं कि जुडिशियल रेमेडीज प्रोवाइड करने में जब हम यूज़ करते हैं तो हम चेक करते हैं कि आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को प्रोटेक्शन करके रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया जाता है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनका ऑल इन ऑल कई सारे लोगों का सेम राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो दैट शुड बी इन रिगार्डेंस टू पब्लिक गवर्नेंस, इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। वो लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाके इस केस को फाइल कर सकते हैं एंड दे कैन गेट एक्सेस टू द जस्टिस। और होगा क्या? By this, it will be active participant in constitutional governance rather than the passive arbiters of the dispute. So इनके थ्रू भी जो इंटरप्रिटेशंस जा रही हैं उनका इतना एटलीस्ट इतना वेटेज दे रखा है दैट इट विल बी लाइक कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एट स्टेट लेवल भी इंश्योर किया जा सके। अगेन प्रोटेक्शन है टू द लीगल एंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। सो हाई कोर्ट कैन रिव्यू द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड इट कैन स्ट्रक डाउन दोज अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज of state legislation. Now see, this is a chart which is explaining that how come these appeals or these cases are refined, or you can say these are filtering and moving towards the apex court, that is supreme court. So subordinate court, district और trial जो courts होते हैं उसमें handling first instance cases, देखो the larger circle is there, यानी larger circle है, that means more cases, there are so many cases here। इसके बाद कुछ केसेस फिल्टर होके जो यहाँ से डिसाइड हो गए, डिसाइड होने के बाद कुछ केसेस यहाँ से गए अपील में और थ्रू सुपरवाइजरी कोर्ट जो हाई कोर्ट डिसाइड करता है। आफ्टर सर्टेन केसेस डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट्स कुछ और फिल्टर होके जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जिनका जो बेसिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर होता है, इट नीड्स मोर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट, तो वहाँ पे ये कुछ जो केसेस हैं हाई कोर्ट के डिसाइड किए हुए वो अगेन अपील में जाते हैं, प्लस द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जहाँ पे देयर इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वो केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। इन दिस वे इस तरह से केसेस
filter out होते हैं in this hierarchy. Now coming pillars of state justice, key takeaways, the last slide where we are going to conclude that why this state judiciary, yeah, you can say how this state judiciary acts as the guardian of law and rights at the state level. This is the reason that high court supervise subordinate courts and protect constitutional rights and ensure rule of law. So through article 214 and 230 to 231, the provisions relating to subordinate courts and the constitution establishing an independent and efficient judicial system is essential for the democracy. So this is why there is, you can say that it could be like said as that it is acting as a constitutional bedrock of state judiciary, where it is defining composition, appointment powers and special provisions governing high courts across India. 214, we discussed that one high court per state. 215, court of record with contempt powers. 216, that flexible judicial strength is there, allocation can be on the basis of the need. And 217, which talks about 62 years of age tenure. 222, transferring one judge to another high court and preventing local biasness and impartiality. And 231, common high court for multiple states and union judiciary. So this state judiciary, the system of the state judiciary, you know now. And I think so that if you like, that's all for today's video on state judiciary. And a strong judiciary is essential for protecting democracy and ensuring justice for every citizen. So I hope this was the complete discussion on state judiciary in India, and I hope this video helped you understand the structure and functions of the judicial system at the state level. So if you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe to the channel, and revise the important constitutional articles properly, and stay connected for more detailed law lectures and educational content. Thank you so much. We'll see you in the next video.